Hello students. So again, today I am going to start the next progression. In the previous lecture we discussed on the arithmetic progression, that is the base of sequence and series. In previous standard 10 standard we already studied the concept of arithmetic progression AP, the nth term and sum of nth term. ये सब मैंने previous lecture में पूरा recall किया था, सब concept मैंने पढ़ाया था. Sequence क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट सीक्वेंस होती है, जिस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती है दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस. अभी यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूरा डिटेल्स मैंने हिस्ट्री दो जितनी भी कंसेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूरा प्रीवियस लेक्चर में लिया है. नाउ 11th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज दैट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Geometric progression. Progression means it is a sequence, arrangement of numbers which follow some specific pattern that is called as the progression. So geometric progression और arithmetic progression में क्या difference है? अगर वो difference समझ में आया तो geometric progression की definition आपको definitely आएंगे. So arithmetic progression किसे कहते हैं? 3, 5, 7, 9. This is AP, whose first term is 3 and common difference is how much? 2. So this is called as AP. अब GP के एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं. ये फर्स्ट एग्जाम्पल 3, 6, 12, 24, 48. This is an arrangement of numbers which follow some specific rule, some pattern or some order that is called as a sequence or progression. अब ये सीक्वेंस है बट ये कौन सी सीक्वेंस है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. और एक एग्जांपल बताता हूँ. सेकंड एग्जांपल, दिस इज 1 -1/3 +1/9 -1/27. दिस इज आल्सो जीपी. बाय ऑब्जर्वेशन दिस इज नॉट एपी. डिफरेंस कांस्टेंट है. 6 - 3 कितना है? 3 है. 12 - 6 कितना है? 6 है. 24 - 12 कितना है? 12 है. ये तो एपी नहीं है लेकिन जीपी है. व्हाई? बिकॉज हियर रेशियो इज कांस्टेंट. रेशियो मीन्स व्हाट? कौन सा भी नंबर ले लो आप और उसका प्रीवियस नंबर से डिवीजन ले लो, दैट डेफिनेटली बिकम्स दैट कांस्टेंट रेशियो. सो इन दैट 6/3 is 2, 12/6 is 2, 24/12 is 2, 48/24 is also 2. So this is a geometric progression. Ratio is constant. So that's why this progression is called as what? Geometric progression. So any number to its previous number whose ratio is constant, such progression is called as what? Geometric progression. So clear difference is what? In arithmetic progression, difference is constant. In geometric progression, ratio is constant. Ratio means what? Any number to its previous number whose division is constant, that is called as the ratio. Any number except first, because first number को previous number नहीं होता. यहाँ पर देखो, -1/3 divided by 1 is -1/3. 1/9 divided by -1/3 is -1/3. -1/27 divided by 1/9, this also -1/3. So this is called as the constant common ratio, which is denoted by R. R is -1/3. फर्स्ट एग्जाम्पल में R कितना था? 2 था. R is equal to what? 2. In AP there is a common difference. In GP there is what? Common ratio. So what is actual definition? Definition is very clear. A sequence T1, T2, T3, T4 up to Tn, where T1 is first term A and Tn plus 1 upon Tn is equal to constant ratio. Such sequence is called as what? Geometric progression or geometric sequence. So here in AP difference constant Tn plus 1 minus Tn is equal to constant. In GP
Tn plus 1 upon Tn is equal to constant. A ratio constant, that is Gp, difference constant, that is what? AP. So here I will write the definition of Gp. अब ये हुई एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल से तो कंसेप्ट क्लियर हुई. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेकंड एग्जाम्पल. फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज 1 here. In first example a is equal to 3. In here the a is equal to 1. So now definition. A sequence T1, T2, T3, T4 up to Tn, where T1 is equal to A, first term, and Tn plus 1 upon Tn is constant. Is called geometric progression. इसे क्या कहेंगे हम? geometric progression. जैसे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP कहते हैं, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहेंगे? GP कहेंगे. सो हियर, सो T1. अब इसके बाद हम nth टर्म का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे. What will be the general form of a GP, geometric progression? एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल लिया था मैंने 3, 6, 12, 24, 48. सो यहाँ पर T1 is what? 3. T2 is what? 3 into 2. T3 is what? 3 into 2 square. T4 is what? 3 into 2 cube. T5 is called 3 into 2 raised to 4. First term is 3, second term is 6, third term is 12, 2 3s are 4 3s are 12, 8 3s are 24, 16 3s are 48. Because here first term is A, that is 3, a ratio is 2. How to find next term? अगर सिक्स टर्म फाइंड करने हमें, तो हम क्या करेंगे? T6 इज इक्वल टू, दैट इज 3 इंटू 2 रेस टू 5. 2 रेस टू 5 कितना होता है? 32. 32 इंटू 3 कितना है? 96. सो बाय दिस ऑब्जर्वेशन वी से दैट दिस इज अ जनरल टर्म. T1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म. T2 इज इक्वल टू AR. T2 is equal to कितना है? AR. T3, what will be the third term? AR square. What is the fourth term? AR cube. अगर फोर्थ टर्म है तो AR क्यूब है. फिफ्थ टर्म है, what will be the fifth term? AR raised to 4. अगर मैं आपको बताऊँ फाइंड आउट 10th टर्म, so you say that A into R raised to 9. अगर आपको 90th टर्म काटना है, T19 इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू 18. A इंटू R रेस टू 18. सो देन टेल मी व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. nth टर्म क्या होगी? बाय दिस ऑब्जर्वेशन, A इंटू R रेस टू n माइनस 1. दिस इज अ जनरल टर्म. द nth टर्म of GP the nth term of GP, that is what? Tn is equal to A into R raised to n minus 1. इसको हम जनरल टर्म भी कहेंगे. जनरल टर्म ऑफ GP. सो ऐसे AP में जनरल टर्म क्या थी? दिस ऑल अबाउट AP की फर्स्ट टर्म थी A, सेकंड टर्म थी A प्लस D,
थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 10th टर्म a प्लस 9d. अगर 10th टर्म है तो a प्लस 9d थी. 20th term T20, 20th term is what? A plus 19D. So from this observation we say that the nth term is A plus n minus 1 into D. This is the nth term of AP. This is all about what? AP. AP की फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D. ऐसी nth टर्म क्या आ जाएंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेम यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है? रेशो है. कॉमन डिफरेंस इज डी, कॉमन रेशो इज व्हाट? R. सो हियर this first example is sufficient for the concept of geometric progression. फर्स्ट टर्म 3 है, इसका तो रेशो कांस्टेंट है, वो तो 2 आया. फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. अब देखो ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कितने आते हैं? 3 इंटू 2 रेस टू 4. ये 2 क्या है? रेशो है. 2 रेस टू 4 16, 16 इंटू 3 48. वैसे 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? a इंटू आर एस टू 9. 19th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? a इंटू आर एस टू 18. सो दिस इज द वे वी से दैट द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, the nth term is what? a into r s to n minus 1. सिर्फ जो यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? n minus 1. बिकॉज ऑफ what? 19 का क्या है? यहाँ पर 18 है. 10 का यहाँ पर कितना है? 9. 5 का यहाँ पर कितना है? 4. सो अगर मैं तो आपको बताऊँ कि what will be the T27 term, what will be the 27th term of GP? That is a इंटू आर एस टू 26. सो इसको स्टडी करना है तो आपको एपी को रिकॉल करना है. एपी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दैट कंसेप्ट बिकम फॉर एवर, आपको फॉर एवर रिमेंबर में रहेंगे. सो ए इंटू आर एस टू एन माइनस 1, दिस इज अ जनरल टर्म ऑफ आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस. दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ प्रोग्रेशन. T1, T2, T3, T4 up to Tn, where first term is A. First term is A, that is first term, and Tn plus 1 upon Tn is constant. He is called geometric progression. उसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? geometric progression. So सिर्फ रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए. अगर वो रेशियो अगर कांस्टेंट आ गया तो एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी व्हाट? geometric progression. So here सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ये कांस्टेंट आना चाहिए. Tn plus 1 डिवाइडेड बाय Tn इज कांस्टेंट. ये रेशियो कांस्टेंट. अगर सिंपल डेफिनेशन बोलना है वर्ड्स में, सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म should be constant. That sequence, that progression is called as what? Geometric progression. Okay, very simple concept. अब ये हुई डेफिनेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की. The ratio constant, geometric progression, difference constant, arithmetic progression. So here, geometric progression. T1, T2, T3, T4, T5, dash Tn. First term A, second term AR, third term AR square, fourth term AR cube, fifth term AR raised to 4, and nth term is AR raised to n minus 1. This is all about geometric progression. इसी को आपको ध्यान देना है. Geometric progression means Tn plus 1 divided by Tn is constant. और इसी रेशो को हम क्या करेंगे? इसी रेशो को हम R से डिनोट करते हैं. R for common ratio, right? So here the nth term का फॉर्मूला Tn is equal to A into R raised to n minus 1. सो AP के साथ हम कंपेयर करेंगे. फॉर AP 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स हमने देखे थे. कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया कि 3 नंबर्स, वो रिकॉल भी किया मैंने. 3 नंबर्स कौन सा लेना है, 4 नंबर्स कौन सा लेना है, 5 नंबर्स कौन सा लेना है.
सो जीपी में 3 numbers, 4 numbers, and 5 numbers. When product of numbers is given, अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो यही 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers कंसिडर करना है. मैं पहले AP का रिवाइज करता हूँ. 3 numbers A माइनस डी, A प्लस डी. 4 numbers A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D. 5 numbers A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. This is 3 numbers, 4 numbers and 5 numbers for AP. Now GP, A by R, AR. यहाँ डिफरेंस है, यहाँ रेशियो है. For 4 numbers A by R cube, A by R, AR cube. सिर्फ उसको AP के साथ कंपेयर करो. डेफिनेटली यू विल गेट द 5 numbers of GP. So what will be the 5 numbers? A by R square, A by R, AR square. These are the 5 numbers of GP. जीपी का है. जीपी में सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए, ये सब समरी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये T1, T2, T3, T4, T5, Tn GP. फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब, फिफ्थ टर्म AR raised to 4, nth term is AR raised to n minus 1. This important Tn plus 1 upon Tn is constant, that is denoted by R, that is called as the common ratio. This is a general form or nth term of geometric progression, that is Tn is equal to A into R raised to n minus 1. 3 numbers of GP, 4 numbers of GP, 5 numbers of GP. For better understanding, we have to compare this in this. This is AP and this is what? GP. Now, मैंने एक कल चीज़ बताई थी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? A, B, C. Then difference is constant. C minus B. So B plus B is equal to C plus A. 2B is equal to C plus A. B is equal to C plus A by 2. In advance मैंने आपको यही बताया था कि this B is called as the arithmetic mean of these two numbers. Now for geometric progression. Geometric progression अगर ये 3 numbers है A, B, C are in GP. अगर ये GP में है तो डेफिनेटली इनका रेशियो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा. सो व्हाट इज रेशियो? B by A is equal to C by B. वहाँ डिफरेंस कांस्टेंट, यहाँ रेशियो कांस्टेंट. सो सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C. B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C. Therefore B is equal to definitely square root of positive square root of AC. B is equal to कितना आएगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ AC. हम एक एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा. वही कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिया था. कौन सा एग्जाम्पल था? 3, 6, 9 नॉट 12, ये 24 बस सफिशियंट है. ये जो 6 है, ये 6 इज डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 12. चेक करके देखो. 12 3 कितना होता है? 36. और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6. अब इसको 12 को देखेंगे. 12 इज डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 24. और 6 इंटू 24 कितना होता है? 144. 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12.
So this is important. If A, B, C are three numbers in GP, then definitely B square is equal to A into C, or B is equal to square root of AC. So this is important concept of geometric progression. इसके बाद ये sufficient है basic study of geometric progression में. अब इस पे हम थोड़े example लेंगे, then we will start the example. Let us see the exercise examples on geometric progression. अब हम बेसिक एग्जाम्पल लेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जो कि आपने 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल है, सेम वैसे एग्जाम्पल रीड को एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एग्जाम्पल, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर जीपी. ये जो 4 सीक्वेंस है ये हमें चेक करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. अगर है, इफ सो राइट Tn. If that is GP, then find out its nth term of GP. उसकी nth term फाइंड करना है. So one by one इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट देखो क्या है, गिवन 2, 6, 18, 54. It means T1 is equal to 2, T2 is equal to 6, T3 is equal to 18, T4 is equal to 54. हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लेंगे. T2 by T1, T3 by T2 and T4 by T3. देखो 6 by 2, 18 by 6, 54 by 18 is equal to 3. सबका रेशियो कितना है, 3 है. Therefore, रेशियो ऑफ consecutive terms are constant. Therefore, सीक्वेंस इज जीपी. अगर रेशियो कांस्टेंट है तो सीक्वेंस क्या है, जीपी है. देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना है, 2 है. फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2, रेशियो कितना है, 3. सो देयरफॉर nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. ये कितना है, 2 into 3 raised to n minus 1. 2 into 3 raised to n minus 1. This is the answer of nth term. जो पहली सीक्वेंस थी वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है. सिर्फ इतना ध्यान देना, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता. 2 into 3 6 कभी नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ पावर एंड इंडाइसिस. मैं उसको थोड़ा रिकॉल करता हूँ. a raised to n and b raised to n, then we write a into b whole raised to n. But अगर सपोज a raised to m है and b raised to n है, पावर डिफरेंट है, then we can't multiply a b raised to m into n. ऐसा कभी नहीं हो सकता. This is wrong. इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं. सो 2 का पावर 1 है, 3 का पावर n माइनस 1 है. दैट्स वाई ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. सो दिस इज आंसर 2 into 3 raised to n minus 1. सो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए, तब आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई इमीडिएटली लेता हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, मैं रिमूव करता हूँ. ये देखो आप कौन सा है, 1 -5 25 -125. से प्रोसीजर तो सेम ही है. फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -5, थर्ड टर्म 25, फोर्थ टर्म -125. -5 by 1 is -5. 25 by -5 is also -5. -125 by 25 is -5.
So ratio of consecutive terms are constant. So therefore this sequence is geometric progression. So first term is 1. रेशो कितना है -5. सो 1 इंटू -5 रेस टू n-1. ये उसका आंसर आ गया. वेरी सिंपल. सेकेंड सीक्वेंस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसका nth टाइम भी मैंने फाइंड की. सिर्फ आपको क्या करना है, इसका रेशियो कांस्टेंट आता है या नहीं ये आपको चेक करना है. देखो थर्ड एग्जांपल इमीडिएटली मैं रिमूव करता हूं. What is third example? √5, 1 by √5, 1 by 5 √5, 1 by 25 √5. देखो आप T2 by T1. T2 कितना है, T1 है √5, T2 है 1 by √5, T3 है 1 by 5 √5, T4 है 1 by 25 √5. पहले हमें चेक करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. सिर्फ आपका इसका रेशियो चेक करना है, कांस्टेंट आता है. देखो T2 by T1 कितना आता है, T2 1 by √5 डिवाइडेड बाय T1 कितना है √5. सो इसका प्रोडक्ट ऐसा होगा 1 by √5 इंटू √5 इज 1 by 5. कितना है 1 by 5. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉमन डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा. √5 इंटू √5 इज 5. अब सेकंड सॉल्व करेंगे T3 by T2. T3 by T2 कितना, T3 कितना है 1 by 5 √5, T2 कितना है 1 by √5, T2 कितना है 1 by √5. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 5 √5 इंटू √5 by 1. रेसिप्रोकल होगा √5 कैंसल, इट इज़ 1 by 5. ये भी कितना आ गया 1 by 5. अब और एक कोशिश करेंगे T4 by T3. T4 कितना है 1 by 25 √5, T3 कितना है 1 by 5 √5. सेम रेसिप्रोकल लेंगे 1 by 25 √5 इंटू 5 इंटू √5 by 1. ये √5 कैंसल, 5 5s are 25, so it is again 1 by 5. कितना है 1 by 5. सबका रेशियो कितना है 1 by 5. सो रेशियो इज कांस्टेंट. सो सीक्वेंस इज व्हाट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसकी फर्स्ट टर्म 5 है, रेशियो 1 by 5 है, √5 इंटू 1 by 5 रेज टू n-1, 1 by 5 रेज टू n-1. ये उसका आंसर. अब ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ. ये T1 7 है, T2 14 है, T3 21 है, T4 28 है. देखो रेशियो ऑफ T2 by T1, 14 by 7 is 2, T3 by T2, 21 by 14 is 3 by 2, T4 by T3, 28 by 21 is 4 by 3. सो ये रेशियो सेम है क्या, नहीं है. सो रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट जीपी. अगर जीपी नहीं है तो उसकी nth टर्म फाइंड करने की जरूरत है क्या, नहीं, इट इज नॉट जीपी. सो फोर्थ एग्जांपल जीपी नहीं है. सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ. ओके, now let us see the next example from the same exercise 2.1 का सेकंड एग्जांपल है. सो ये 4 एग्जांपल्स है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. R गिवन, A गिवन 7th टर्म फाइंड करना है, A गिवन, R गिवन 6th टर्म फाइंड करना है. वैसे एग्जांपल्स है, एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, Tn इज इक्वल टू A इंटू R एस टू n. फर्स्ट एग्जांपल, सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम गिवन. सो R इज इक्वल टू 1 by 3, A is equal to 9,
एंड T7 फाइंड करना है मीन्स व्हाट, n इज इक्वल टू 7. So what is the formula for Tn? Tn is equal to a into r raised to n minus 1. T7 ये 9 है, ये is 9. 9 into r कितना है 1/3. 1/3 7 minus 1 कितना है 7 minus 1. 9 क्या होता है 3 स्क्वायर होता है. ये 1/3 raised to 6. ये 3 स्क्वायर 1 raised to 6 is 1. 3 raised to 6 यहाँ पर 3 raised to 6. ये 3 स्क्वायर और इसका 2 गया तो यहाँ पर 4 बन जाएगा. उसमें से 3 स्क्वायर कट होगा, कैंसिल होगा. सो 1/3 raised to 4. अगर 3 raised to 4 आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/81 आएगा. 3 raised to 4 is 81. दिस इज अ 7th टर्म ऑफ जीपी. पार्ट ऑफ सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है. बहुत ही सिंपल वे से आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो आंसर इज व्हाट 1/t raised to 1/81. t raised to 7 कितना आ गया 81. सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पर. सेकंड एग्जांपल सो गिवन लिखेंगे पहले. क्या दिया है उन्होंने. फर्स्ट टर्म इज 7 डिवाइडेड बाय 243. रेशियो इज 3 एंड n इज इक्वल टू 6. T6 फाइंड करना है मीन्स n कितना दिया है 6 दिया है. पहले अगर गिवन डाटा लिखा तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है Tn का फॉर्मूला. सो लिखो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला ये इंटू आर रेस्ट टू n माइनस 1. ये कितना है 7 डिवाइडेड बाय 243. r कितना है 3 रेस्ट टू 6 माइनस 1. r 3 है, n 6 है, 6 माइनस 1. ये 7. ये 243 है, 3 रेस्ट टू 5 होता है और ये भी 3 रेस्ट टू 5. आप कैलकुलेशन करके देखो. 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स करो, डेफिनेटली यू विल गेट 243. सो 243 इज नथिंग बट 3 रेस्ट टू 5. दिस 3 रेस्ट टू 5 एंड दिस 3 रेस्ट टू 5 कैंसल. व्हाट इज आंसर 7. सो Tn means we have to find T6. So answer is 6th term of this GP is 7. So this is what answer. Okay, 2 एग्जाम्पल हुए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. अब थर्ड एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल यही है यहाँ पर. देखो थर्ड एग्जाम्पल. R कितना दिया है -3 दिया है. T6 कितना दिया है. T6 is 1701. T6 is 1701. It means n is equal to how much 6. So ये फॉर्मूला अप्लाई करना है T6. ये जो फाइंड करना है R -3 रेस्ट टू n 6 minus 1. 1701 -3 रेस्ट टू 5 -3 रेस्ट टू 5. नो, ये तो हमें फाइंड करना है. सॉरी, यहाँ पर ये फाइंड करना है. T6 यहाँ लिखना है 1701. सो ये -3 रेस्ट टू 5 इज -243. निगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या होता है निगेटिव होता है. 3 रेस्ट टू 5 आप कैलकुलेट करके देखो 243 आएगा. लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1701. अभी ये फाइंड करना है 1701 डिवाइडेड बाय 243. ये माइनस साइन न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर लिखो टू बी सेम. ये इधर डिवाइड होगा सिर्फ. आप देखो किसने डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा. आई थिंक 7 भी नहीं. तो 7 3s are 21, 7 4s are 28 plus 2 30. करेक्ट है. A is equal to what 7. ये 243 7s are. कैलकुलेशन करो आप, डेफिनेटली ए की वैल्यू कितनी आएंगी 7 -7. सो ये दिस इज माइनस साइन, दैट्स माय आंसर इन द माइनस. सो ए की वैल्यू कितनी आ गई -7. अभी लास्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल. A. So first of all write given. What he has given? He has given A is equal to 2/3.
सिक्स्थ टर्म इज 162 एंड हमें फाइंड करना है r. सो यहाँ पर n6 लिखो. सिक्स्थ टर्म गिवन मीन्स n इज इक्वल टू कितना है 6. अब यही फॉर्मूला आपको यूज करना है बिकॉज nth टर्म के फॉर्मूले पर ही एग्जाम्पल्स है. लास्ट टाइम हमने ये फाइंड किया था, यहाँ पर r फाइंड करना है. पर दो एग्जाम्पल में 7th टर्म 6th टर्म फाइंड की, एक में ये फाइंड किया. आप कौन सा फाइंड करना है? r फाइंड करना है. सो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन हियर t9 t6 ये 2/3 r तो फाइंड करना है. रेस टू n minus 1 6 minus 1 t6 is 162 2/3 r रेस टू कितना 5 r रेस टू 5. सो अब r रेस टू 5 हमें फाइंड करना है. ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 162 इंटू 3. शिफ्टिंग में डिवीजन की टर्म न्यूमरेटर जाती है, न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर में शिफ्ट होती है. ये 2 यहाँ पर जाएगा, ये 2 r रेस टू 5. ये कैलकुलेशन 81 इंटू 3 और 81 इंटू 3 इज 243. कितना है 243. अब r रेस टू 5 इज इक्वल टू ये 3 रेस टू 5. 243 कितना है 3 रेस टू 5. यही चार एग्जाम्पल में 2-3 बार आए. 3 रेस टू 5 कितना है 243. r रेस टू 5 इज इक्वल टू 3 रेस टू 5. ऑब्वियसली r कितना आएगा 3. सो ये पावर इंडाइसिस का रूल है. ये रूल ऐसा है a रेस टू m इज इक्वल टू b रेस टू m. देन वी से दैट a इज इक्वल टू व्हाट b. ये पावर एंड इंडाइसिस का रूल है. a रेस टू m इज इक्वल टू b रेस टू m. देन a इज इक्वल टू व्हाट b. सो हियर r इज इक्वल टू व्हाट 3. सो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट है. यहाँ क्या है रेशियो कांस्टेंट है. tn का फॉर्मूला क्या है a इंटू r रेस टू n माइनस 1. राइट. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. बहुत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत आगे तक जाएगा. ये बेसिक एग्जाम्पल थे. सो टुडे इज सफिशिएंट फॉर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. On next video lecture we will take more example on the first exercise 2.1. So today we'll stop here. Thank you very much. Stay home and stay safe.